Thank you everyone for joining today. Air pollution has emerged as Maharashtra's newest public health crisis, cutting across economy and human health all alike. To highlight the real picture of India's growing air pollution crisis, iForest kickstarted Smog Tales, a focused initiative to spotlight city level challenges and ground realities. हमने इस मॉकटेल की शुरुआत साल 2024 में की, जहां हमने पूरे देश के 5 शहर पटना, गुवाहाटी, बद्दी, चंडीगढ़ और मेरठ के एयर पोल्यूशन क्राइसिस के बारे में बात की। इस साल सीजन 2 में हमने हमने और अलग शहरों के बारे में बात की, जहां हमने पिछले 3 एपिसोड्स में थाने, अमरावती और नागपुर के एयर पोल्यूशन के बारे में बात की। और आज हम बात करेंगे छत्रपति संभाजी नगर के एयर पोल्यूशन के बारे में। I'm Shweta, and on behalf of iForest, I welcome our esteemed panelists and all participants to today's webinar. We are honored to have with us Dr. Sachin Joshi, pulmonologist, Shwas Clinic, Shri Ravi Gyanprakash Chaudhary, founder and director, Paras Youth Foundation, and Shri Nikhil Nirkhe, principal correspondent, Maharashtra Times. I would now like to request my colleague, Dr. Pratima, Director Air Pollution, to present her findings about Chhatrapati Sambhaji Nagar. She will then go on to moderating the discussion with our panel experts, after which we will open the floor to questions. So please feel free to drop in your questions. Over to you, Pratima. Thank you, Shweta. Thank you so much. I again welcome everyone, Nikhil ji, Ravi ji, and Dr. Sachin on this for this webinar. I just want to highlight the fact that this webinar is organized to create awareness among citizen groups, among like-minded people who are concerned about air pollution issues. We always tend to talk about bigger cities, metro cities, and forget that smaller cities are also getting impacted by pollution, and hence those cities also need to be talked about, discussed, and create awareness on the same. So with this, I will just share my slides. Please let me know if you're able to see it. Yes. Yes. Thank you. Okay, so today we are going to talk about Chhatrapati Sambhaji Nagar. Just to give you background, this is what the city looks like: garbage burning, too much crowded roads, and industrial pollution, waste burning, everything is there. I want to highlight your fact to these two lower bottom pictures. Now, this is what Chhatrapati Sambhaji Nagar air quality levels were in the morning, and this is what Mumbai's air quality levels are. So it's not that, I just want to emphasize on the point that it's not always that the metro cities are the most polluting one. Even the smaller, the tier 2, tier 3 cities are more polluting than the metro cities, and we can clearly see here from the AQI level. Now, talking about our small study, we looked at the monitoring data. This is our study area, Chhatrapati Sambhaji Nagar. And there are manual stations also and continuous air quality monitoring stations also in the city, marked in red and blue. Now, if we look at the city demographics, it's 141 square kilometer area and around 17 lakh population in the city. Now, there are around 7 manual stations and 3 continuous air quality monitoring stations. So the total number of stations are 11. However, according to CPCB's thumb rule, we need 5 continuous air quality monitoring stations and 3 manual stations. So manual station is 5, but we need to increase the continuous air quality monitoring stations. Now, if we look at this map, we can clearly see that the northern part of Chhatrapati Sambhaji Nagar does not have any CAM station. Even like this lower part also does not have any station. We just have one station in the southwestern part and one in the eastern part. So this definitely does not cover the city well in terms of monitoring
the air pollution level data. Now, the approach of the study was that we looked at the CAM station data available with the Pollution Control Board and CPCB, and it gives a 15-minute interval data. So this data was collected for PM 2.5, 10 SOx, NOx. We looked at 3 years data, 2023, 24, 25, and then using Python, we aggregated this data. We ensured that if the data was less than 60%, we did not consider that for our analysis. And then using various platforms, tools, Tableau, Power BI, and GS, we have given the analysis and the visual presentation. So we looked at the 3 stations. Here, yes, 2025 is not over. December is still going on. So we have considered data from January to November, and we have taken an annual average for these 3 stations. MIDC, you can see PM10 is 76 micrograms per meter cube, Ratnakar colony 78 micrograms per meter cube, and Morchok had 62. So it's clearly that Ratnakar colony has the highest level of pollution compared to the 3 stations, CAM stations in the city. Now, if we look at the various pollutants, PM 2.5, 10, SOx, NOx, PM 2.5, I have marked in red because there is no data available for PM 2.5 for this particular station for 2024. There's no data available. So that's definitely a challenge, and I don't understand why, like the entire year, there was no data available and no step was taken here. PM10 is definitely above the CPCB standards by 9 points. And here for MIDC station, both PM 2.5 and 10 are above standards. PM 2.5 is slightly above the standard, so it's okay, fine, but PM10 is definitely above. And for Ratnakar colony, both PM10 and PM 2.5 are way above the National Ambient Air Quality Standards by CPCB. If we look at the seasonal variation here, we can clearly see the winter season at all stations have recorded higher PM10 levels. So winter season is definitely a problem. Here we did not had, for Ratnakar colony, we did not had 3-month data from June, July, and August, and hence we could not do the monsoon monsoon season data analysis. Now, if we look at the various pollutants for Ratnakar colony, now as I mentioned that 3-month data was not available for Ratnakar colony, and hence there might be some variation in the annual average. We compared 2 years, 2024 and 2025, and clearly we can see that there is a decline in the pollution levels. All the pollutants, PM 2.5, 10, SOx, NOx, they have decreased in 2025. So that's a good sign that the pollution level has come down for this particular station. Now, if we look at the Morchok station, we looked at 3 years because we had data for 2023 for this particular station. Here also we can see that there is decline in PM10. Here, as I mentioned, PM 2.5 data was not available, so we did not include it. And PM10, there's a decline. NO2, NOx, there is definitely decline. However, SOx data, it has increased. There's almost like 50% increase in SOx values, and which shows that probably there are some industrial activities happening around in the area by which the SOx values have gone up. So yeah, that's interesting to know, but this needs to be checked on ground. Now, if we look at MIDC, again, 2023 data was not available. So we just looked at 2024 and 2025, and clearly here there is a decrease in PM 2.5, 10, and SOx values. However, NO2 values have increased here by 18%. Now, this is very interesting because probably there's a lot of vehicular movement, or probably a national highway corridor or some major road is passing by where there's a lot of vehicular movement around the MIDC stop, and hence NOx values have increased. Let us also look what is the time duration when this NOx values have increased later on.
So we also did the winter season comparison for 2024 and 2025. And clearly we can see that in 2025, only more station has increased data. Rest all other stations, there was decrease in the winter season as well. Only this more station, there's a lot of increase in the winter season PM10 values. Um, Rachnakar, colony, this station has shown the maximum decrease in both PM 2.5 and PM 10 values. PM 2.5 almost by 63% there is a decline, and PM 10 there is a decline by 42%. Now, if we look at the monthly variation, now for more station, we did not have the January data, so we have not included that. But there is definitely increase during the, usually we see increase during the November season because of the winter season, but there is a sharp increase during the September time for PM10 values. And again, in the March, we can see a sharp rise. Now, this is very unlike with the global trend that we observe. Usually, winter season has a sharp peak, but here probably some activity was going on because of which September has a sharp peak. Rachnakar, we did not have 3 month data, but here clearly the winter season January has high peak for both PM 2.5 and PM 10. And here November, we can see a sharp rise due to winter season, both in PM 2.5 and PM 10. Now for MIDC station, we had data for all months and for all the pollutants. And PM 2.5, we saw a 92% increase compared to the annual average and 53% increase in PM 10 values in January month. And in November, December, we saw around 25% increase in PM 2.5 and 28% increase in PM 10. Now, definitely, winter season is a huge problem where, the mixing height comes down, the dispersion does not happen, and the concentration level increase, which also causes a lot of health impacts. And understanding the city's landscape, there's a lot of industrial area. There's, gateway to Ajanta and Ellora caves, so a lot of tourist movement will be happening. And a lot of strong aluminum processing plants are also there. So we need to understand what is happening in the city. Now, if we look at monthly trends, we clearly see that there is increase in the January month and again in the November time. So the trend is same for PM 2.5, 10 and NOx. However, SOx March month has sharp increase in the SOx values. So we need to understand like what is happening around this month in the city. And however, in the winter season, it's like same for both November and December months. If we look at the hourly trends, now morning peak is visible around 9 to 10 a.m. for both PM 2.5 and PM 10. And evening peak is observed during 10 to 11 p.m. So probably this both can be attributed to a lot of vehicular movement in the city, and hence this follows the global trend in the morning peak and the evening peak. So this is not very stark difference we see from other cities. Interesting that SO2 level stays low throughout all the hours of the day. We also looked at the emission inventory data, a study carried out by IIT Bombay, and they have highlighted very clearly that the resuspension of the dust has the highest percentage share in both PM10 and PM 2.5. And next contributor is industries, around 30% for PM 2.5 and 21% for PM 10. And then next vehicular flow, the emissions from the vehicular movement is around 21% PM10 contribution and 23%. So major three sectors which contribute hugely to the PM emissions are vehicular movement, resuspension of the dust, and the industries. The rest other are very minute, probably 1 or 2%. So they are very minor. But we need to think, that
Resuspension of the dust is a huge problem in the city. So probably the road infrastructure is not there, or green zones are really less, or probably end-to-end pavement is not there. Mechanical sweepers are not, if they are there, they're not functioning properly. And so some of these challenges, barren lands, they all contribute to the dust movement. And vehicular emission share is around 20 to 23% for both PM 2.5 and 10. So we definitely need to start thinking about how to make our technology clean for transportation. We also, looked at the control measures that are identified in the cleaner action strategies, and we compared it with the SMART framework. Now, SMART framework says that your control measures need to be very specific, like what activity needs to be carried out. It needs to be measurable, like whether after implementation there will be some reduction in emission or not, whether we can achieve, whether the timelines that are provided in the action plan, they are achievable or not, whether they address the air pollutants or not, or and they are, the timeline set is appropriate. So we looked at these 5 criterias, and there are around 28 control measures identified in the cleaner action strategy. So 13 control measures are attributed to vehicular emissions, 3 for resuspended dust, and 5 for industrial emissions. Rest for biomass burning 2, and rest all 1 control measures are given for each sector. Now, we saw that resuspended dust is the major contributor. However, there are only 3 control measures given for resuspended dust mitigation. And if we looked at the SMART framework, only 1 control measures abides by the criteria of SMART framework. 3 control measures, they follow like 3 criterias, and rest 24 control measures, they follow less than like probably 1 or 2 criteria. They are really weak. So this is an indication that, the action plans that are developed for the cities, they are not robust enough to reduce the emission level, or they are not targeted to the specific challenges of air pollution. So just talking about the highlights, we saw that there are only 3 CAM stations. Northern part of the city is not covered. Southern part, we definitely need more coverage. Data availability was one of the major challenges that we saw. 2023, 1 station data was not there. Ratnakar, colony, we did not see 3 months complete data was missing. Then for more station, January month data was missing. So this needs to be verified, this needs to be addressed by the government officials, and then only we will be able to get a clear indication of whether the emissions have reduced or they are stable, or what is the ground scenario. Now, there is definitely a decrease in the pollution levels compared to 2024 in both PM 2.5 and PM 10 values, which clearly says that some action has been taken, or probably could be a scenario that area around the station is quite clean, and hence there's a lot of effort that was put to ensure that the area around the stations are clean enough to record low data. And we saw that winter months, definitely the pollution level has increased for both PM 2.5 and 10. And morning peak was visible around 9 to 10 a.m. and then the evening peak around 10 to 11 p.m. Now, talking about the SMART framework, only 17% of the control measures follow the SMART framework. Rest, all the control measures are really weak in shape. So that is something we will have to talk about, so that the implementation happens in a proper way when the revision of the control measures takes place. So yes, I'll stop sharing. These were the findings of our study. And now we will talk with our panel members who have found time and to be present with us today here. So I'll start with Shri Ravi Gyan Prakash ji.
Sir, you already you are part of a think tank which is working on ground, and I would want to understand from you that we clearly saw that there's huge data gap, a lot of missing information. The coverage of the data is not great, uh, and there are a lot of industrial bells in the city, a lot of aluminum processing units, and when we talk about the control measures, only very few control measures are attributed for the industrial sectors. So, what action needs to be taken for the city so that first, the coverage of the data improves, and second, industrial pollution, which is toxic also, which impacts our health, how do we, control that? If you could unmute yourself. Yeah, sorry. So, थैंक यू। एक्चुअली छत्रपति संभाजी नगर अगर हम देखें तो इसके ऑलमोस्ट 3 साइड में इंडस्ट्रियल है, स्पेशली 2 साइड में इंडस्ट्रियल जोन है, थर्ड में अभी डेवलप हो रहा है। और जहां पे मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, जो फोर्थ साइड है हमारा, तो वहां पर बहुत सारी जो ईट ईट बनाने की इंडस्ट्रीज हैं, तो वो हैं। ये जो गैप है डेटा में, इसके लिए हमने बहुत बार मतलब ये किया है, बट जो गवर्नमेंट है अपने लेवल पे मे बी वो डेटा मैनेज करते हैं, या फिर जो मतलब जो गैप है मैनिपुलेशन का भी मतलब काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ये हो सकता है। ये तो रहा प्रॉब्लम का एक सोर्स। सॉल्यूशन इस पे मतलब एक ऐसा है कि जैसे हमें लगता है 2 तरह से यहाँ पे काम करने की जरूरत है। एक तो है जो गवर्नमेंट बॉडी, जो अथॉरिटी है, जिनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें क्लीन एयर मिले, जो भी सिटीजन है। और दूसरा है कि सिटीजन्स की भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है इसमें, कि एक थोड़ा सा प्रोएक्टिव तरीके से हम इसके लिए फाइट करें, या एटलीस्ट हमें क्लीन एयर के लिए डिमांड रखें। तो इसमें जो एक इंडस्ट्रियल पॉइंट का एक और गैप मैं आपको एक हाईलाइट करना चाहूंगा, कि जैसे जो मोरे चौक है, ये भी इंडस्ट्रियल जोन है, बट एज कंपेयर करेंगे तो वहां का पोल्यूशन लेवल, जो एक रचनाकार सोसाइटी है, वो इंडस्ट्रियल जोन है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, वहां पे कोई बहुत मेजर कंस्ट्रक्शन या और कुछ ऐसा वहां सोर्स नहीं है, बट वो इंडिकेट कर रहा है कि वहां पर ज्यादा पोल्यूशन का लेवल है। चिकलठाना एमआईडीसी में ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ उस एरिया में जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन काफी फास्ट हो रहा है, और बहुत कम इंडस्ट्रियल एरिया बचा है अभी, वो एक सिटी में ही कन्वर्ट हो रहा है, जो चिकलठाना एमआईडीसी है। रही बात वाड़ूज एमआईडीसी की, तो वहां पे तो पूरा मतलब वो इंडस्ट्रियल हब है, तो वहां का भी डेटा जो आ रहा है, तो एक थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं इसमें मतलब ये लगता है कि कुछ एरर है। मे बी वो कुछ मैनिपुलेशन का है, या फिर सेंसर बेस्ड एरर हो सकता है, या फिर कोई कुछ ऐसी एक्टिविटी की जा रही है कि अपने लेवल पे उसको सेटल किया जा रहा है कि वो रीडिंग ही ना पाए उतनी प्रॉपर। तो इन सब के पीछे मुझे लगता है कि अगर सिटीजन एक स्ट्रॉन्ग वॉइस क्रिएट करें, अभी हैं बहुत सारे मतलब लोग इस पे डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम ये है, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, बट एक कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर भी एक प्रेशर क्रिएट हो। और अभी कुछ कुछ इनिशिएटिव यहाँ पे किए गए हैं, जैसे फाउंटेन्स बनाए गए हैं, तो उससे जो पार्टिकल सेट होने चाहिए वो हो रहे हैं, बट वो अभी इतने नहीं है जितना पॉल्यूशन है। जो गैप है, गैप के अकॉर्डिंग जो हमें एक मेजर्स लेने चाहिए, वो नहीं है आज भी। बहुत सारे इसमें कॉमन है, जैसे जो गार्बेज बर्निंग है, या फिर अभी विंटर में एक ड्राई लीफ होता है, जो जो पत्तों से गिरता है, तो एक जनरल प्रैक्टिस होता है, जो स्वीपर होते हैं एएमसी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, तो ये जमा करते हैं और उसे मतलब आग लगा देते हैं। तो ये भी एक मतलब एक है कि जो मतलब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसको एक सिस्टमैटिक लीफ को अगर कंपोस्ट किया जाए, हमने जैसे किया है बहुत सारे मतलब कुछ अलग अलग सोसाइटीज में हमने ये किया कि जैसे सोसाइटी में जो है जो ड्राई लीफ है, उसे अगर हम कंपोस्ट करते हैं तो वो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि अभी अगर हम जला रहे हैं तो वो एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड वे से अगर थोड़ा सा ड्राई लीफ मैनेजमेंट हो, वो एक हो सकता है। दूसरा जो गार्बेज गार्बेज बर्निंग का भी पॉइंटर है, वो भी काफी एक
हो रही है सिटी में, मिनिमाइज हुई है एज कंपेयर टू जो पहले होती थी, बट उसमें भी अभी काफी स्कोप है वहां पर काम करने के लिए। और एज ए सिटीजन लेवल पर भी मतलब हमें लगता है कि मतलब एक होना चाहिए, जैसे हम हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, तो हम क्वेश्चन करते हैं, कहीं अगर दिखाई दे रहा है ऐसा तो वहां टोकते हैं उन्हें कि आप क्यों जला रहे हो, हम फोटो निकाल के आपका मतलब ये करें, कंप्लेन करें, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं मतलब एक ये लगेगा कि हाँ हमें कोई देख रहा है, हमारे ऊपर कोई मतलब पूछने वाला है। तो मुझे लगता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थोड़ा सा एक अवेयरनेस अच्छा क्रिएट हो, जिसके लिए हम मतलब प्रयासरत भी हैं, प्रयास कर रहे हैं उसमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, तो ये कलेक्टिव एफर्ट्स अगर आएगा तो हमारा जो AQI है आज 150 प्लस के इसमें जनरली रहता है, तो कभी कभी 200 के आसपास भी इसका जो काउंट जाता है, तो वो अगर मिनिमाइज, और अभी जो इंडस्ट्रियल एक काफी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, तो उससे तो ये प्रॉब्लम और बढ़ेगा, तो ये अभी सही समय है इस पे एक्ट करने के लिए। राइट राइट। थैंक यू रवि जी। मैं दो तीन सवाल, आपने बहुत ही एक विशेष मुद्दा उठाया है कि डिसेंट्रलाइज्ड कंपोस्टिंग प्लान्स होने चाहिए। एंड आपने बोला कि अगर कोई जलाते हुए दिखाई दे रहा है तो वो फोटो खींच के कंप्लेन की जा सकती है। तो मैं इस विषय में आपके पास वापस दोबारा आऊंगी। मैं डॉक्टर सचिन जी के पास जाना चाहूंगी, हमारे साथ पल्मोनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सचिन। डॉक्टर सचिन, कैन यू हियर मी? यस, बोलिए प्लीज। यस। सो वी हाँ, वी तो मैंने अभी तक सुना आपका डिस्कशन, मैम। जी जी। सो मैं हेलो। आपसे हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। जी। सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी डॉक्टर सचिन दैट जब जाड़े का मौसम आता है तो हम सब पोल्यूशन की बात करने लगते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं पोल्यूशन के बारे में, ऐसा लगता है कि सब सही हो गया है। और सबसे ज्यादा बीमारियों का सीजन भी जाड़े के सीजन में ही शुरू हो जाता है, खांसी हो ट्रू। गया, जुकाम हो गया, एंड देन पल्मोनरी जितने भी डिजीज होते हैं सारे विंटर सीजन में ही शुरू होते हैं। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या छत्रपति संभाजी नगर में भी क्या आपने इस तरीके का राइज देखा है इन पल्मोनरी डिजीजेस? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस शहर में काम करने का? ये देखिए, मैं 17 साल से घर में काम कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि विंटर सीजन में ये जो पीक है वो बढ़ते जा रहे हैं। हम्म एक्चुअली जो जनवरी यानी कि नवंबर से हमारा जो है ये पीक स्टार्ट हो जाता है। हम्म। तो नवंबर में थोड़े कम रहते हैं, पर दिसंबर में इतना पीक नहीं रहता है जितना जनवरी में रहता है। अच्छा। पर मैं अभी देख रहा हूँ कि नवंबर में भी पेशेंट का पीक है। ओके। कल मैंने एक इंटरव्यू दिया था एक न्यूज, तो उसमें वॉकिंग निमोनिया बोल के एक टर्म है, जो मैं बहुत सारे पेशेंट को देख रहा हूँ जिसमें माइल्ड फीवर रहता है, कफ रहता है, और पेशेंट यानी कि डेली रूटीन करता है, तो समझ में नहीं आता है कि उसको निमोनिया हो गया है। ये वॉकिंग निमोनिया जो है ना, ये एक्चुअली बैक्टीरियल निमोनिया है, पर इसका इंसिडेंस भी बढ़ते जा रहा है ये दिनों में। तो इट इज वेरी डेंजरस कि वो 7-8 दिन का निमोनिया रहता है। अब खांसी नहीं रहती, इसलिए वो क्या करते हैं कि पहले छोटे डॉक्टर के पास जाते हैं, बाद में पल्मोनोलॉजिस्ट के पास रेफर हो जाते हैं। तब हमको जाके समझ में आता है कि कुछ तो भी अंदर गड़बड़ है। तो हमने देखा है कि ये निमोनिया बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे अस्थमा के पेशेंट है, जिनको घर में फैमिली की हिस्ट्री भी नहीं है, वो पेशेंट्स भी बहुत ज्यादा एलर्जी के बढ़ रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन वी आर फेसिंग लॉट ऑफ पेशेंट्स दोज आर कमिंग विथ LRTI। तो ओके। ऐसे पेशेंट हमारे पास ज्यादा बढ़ रहे हैं, राइट और वो राइट। नवंबर में बढ़ रहे हैं। हम्म। एक्चुअली नवंबर दिसंबर ये जरा थोड़े यानी कि इतना पीक नहीं रहता है पेशेंट का, जनवरी में ज्यादा बढ़ जाता है। हम्म। डॉक्टर सचिन, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी दैट आर यू कीपिंग एनी टैब ऑफ विच आर द एरियाज फ्रॉम वेयर योर पेशेंट्स आर कमिंग एंड व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ दीज पेशेंट्स? ये जो है ना, ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया से भी ये होते हैं। हम रखते हैं ऐसा कि कहाँ से पेशेंट आ रहा है। तो जैसे हमारे यहाँ जो महानगर पालिका जो है, जहाँ हमारा गार्बेज ये करती है नारेगांव एरिया में, वहाँ जहाँ वो जलाते भी है कूड़ा कभी कभी, तो हम्म वहाँ वो एरिया में, और इंडस्ट्रियल एरिया जो है बजाज नगर हम्म। है, वाड़ूज है, वहां से जो पेशेंट आ रहे हैं, दे आर हम्म। मोर फेसिंग दिस प्रॉब्लम्स। Okay, interesting. This is very, and what is the age group?
of एज ग्रुप अबाउट 35 के ऊपर, 35 to 60। okay. What about small kids? स्मॉल किड्स, ये तो अभी ये जो स्कूल चल रहे हैं, तो स्कूल की वजह से यहाँ सिटी एरिया से भी ज्यादा है। और अभी मैं, यानी कि शॉकिंग है मेरे लिए कि विलेज से भी ज्यादा बच्चे आ रही है, एज ग्रुप वाले, अच्छा। जो कि समझो 7 to 14 के एज ग्रुप में है। ओके ओके। सो डॉक्टर, हम लोग रिसर्च कितना भी करें, साइंस जब बोला जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, तो लोग उतना सुनते नहीं है, क्योंकि शायद साइंस की भाषा हम लोग इतनी डिफिकल्ट रखते हैं कि वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। पहुंचते नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन जब एक डॉक्टर बात करते हैं अपने पेशेंट से, तो मुझे लगता है कि शायद वो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, श्योर, यस यस। रवि जी ने भी बोला कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। तो आपकी तरफ से कोई ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं क्या? हाँ, हम ना मीडिया थ्रू करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया पे भी अभी हमने ये किया था कि ये जो बोन फायर रहते हैं यूज टायर्स के, इंडस्ट्रियल एरिया में करते हैं लोग, हाँ और हाँ। जो ये लकड़ी भी जलाते हैं, या हम्म ज्यादा देर चलने के लिए यूज प्लास्टिक, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया में क्या रहता है कि बेसिकली ज्यादातर इंडस्ट्रियों के बाहर जो है, ये हम्म, अपने ये रहते, वॉचमैन रहते हैं, हाँ उनको रात भर जागना पड़ता है। तो हाँ वो लकड़ी का किया तो वो जल्दी से खत्म हो जाती है वो बोन फायर। हाँ। तो दे यूज प्लास्टिक्स एंड टायर्स, यूज टायर्स। तो हम्म इसकी वजह से जो केमिकल ये होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे ये अवेयरनेस चालू भी कर देते हैं कि डोंट ओके। यूज दिस टायर्स एंड ये, और ऐसे बोन फायर मत किया करो। आप ज्यादा से ज्यादा ये जो है गर्म कपड़े का पहना करो, स्वेटर्स वगैरह। और हम्म। आप जो है इलेक्ट्रिक जो ये रहते हैं वो यूज किया करो, समझो अफोर्डिंग क्लास है तो। राइट राइट ऐसे राइट। हम इनिशिएटिव लेते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन थोड़ा तो भी, यानी कि हम इतना ज्यादा नहीं कम कर सकते, पर ये तो हम कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे ज्यादा फोकस करते हैं हम। ये दिनों में क्या रहता है कि हमारा एक वर्ल्ड सीओपीडी डे बोल के रहता है। सीओपीडी हाँ। बोले तो जो पोल्यूशन की वजह से जो दमा होता है, ब्रेथलेसनेस, तो हम्म हम उसकी साइकिल रैली भी निकालते हैं कि ये क्यों होता है। जैसे अब घर में मॉस्किटो कॉइल लगाते हैं, तो अभी जो हम्म। हमारी चेस सोसाइटी है ना, चेस सोसाइटी ने पेपर प्रेजेंट किया है कि 1 मॉस्किटो कॉइल इज इक्वल टू टेकिंग 100 बीडीज। ओ। आप 100 बीडी अगर पीते हैं, तो हम्म। उसका जो पोल्यूशन है इज इक्वल टू द वन दैट कॉइल, ओके। मॉस्कुलर रिपेलेंट कॉइल है ना, राइट। तो वो उसके बराबर है। तो ये हम जो है सोशल मीडिया थ्रू इसकी ज्यादा ये करते हैं। और राइट। पेपर में भी जो है उसके हमारे जो है आर्टिकल्स देते हैं, जिससे हम्म लोगों में अवेयरनेस हो कि ये जो स्मॉल स्मॉल लेवल पे आप पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, हम्म। तो वो आप भी इन्फेक्ट होते हैं उससे, और घर में जो बड़े लोग हैं, चिल्ड्रंस हैं, वो भी इन्फेक्ट होते हैं। Right, right, right. Thank you, Dr. Sachin. I'll come back to you. I'll now go to Shri Nikhil ji. Nikhil ji, thank you for joining us today. मीडिया का रोल बहुत बड़ा है। दोनों रवि जी ने और डॉक्टर सचिन ने इसकी बातें की हैं कि गवर्नमेंट जो काम कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन जब तक अवेयरनेस नहीं क्रिएट होगा, लोगों को पता नहीं चलेगा क्या काम हो रहा है या पोल्यूशन हमको किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, तब तक लोग शायद उस चीज को बंद नहीं करेंगे। जैसे प्लास्टिक जला रहे हैं गर्म रखने के लिए अपने आप को, तो उन्हें नहीं पता क्या 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 बीमारी हो सकती है उससे। एंड तो इसके लिए मीडिया का क्या रोल होना चाहिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए? थैंक यू मैम। बात ऐसी है कि मीडिया का रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और मीडिया काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब मेरी खुद की बात अगर मैं बताऊं, तो ये जो आप अभी जो सब्जेक्ट टॉपिक निकाला है प्लास्टिक जलाने का, तो हम इसको मराठी में शेकोटी पेटोणे ऐसे बोलते हैं, जो ठंडी के जिसमें लकड़ी जलाते हैं, उसको हम्म मराठी हम शेकोटी बोलते हैं। हम्म लेकिन इसमें आजकल प्लास्टिक भी जला रहे, उसी का मैंने न्यूज बनाया था, वो हेडलाइन भी बना था उस दिन का हमारे सिटी न्यूज़पेपर का। तो हम्म इसी बारे में ये ऐसा बहुत कुछ चल रहा है सिटी में। दूसरी बात ये है कि 12 महीने हमारे सिटी में, वेरी सैड टू से, लेकिन ये जो गार्बेज बर्निंग है, पूरा कचरा जलाने का, पत्तों का कचरा जलाने का, ये जो इशू है,
वो बहुत सीरियस लेवल पे है और हर जगह है। इसके बारे में हमने जितना चाहे उतना, मैं खुद भी करता हूँ, बहुत सारी स्टोरीज की है। और उसी में जो कॉरपोरेशन के कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, वो खुद इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और दूसरी बात, एट एट द सेम टाइम जो सिटीजन्स है, उनको ये अंडरस्टैंडिंग कम है कि ये जलाना नहीं चाहिए, और ये जलाने में और कचरा कहीं पे भी फेंकने में ये हमारे सिटीजन्स ये ज्यादा इन्वॉल्व है इसमें। उनको क्यों अंडरस्टैंडिंग नहीं, इवन दो आर वेल एजुकेटेड, ये भी एजुकेटेड सिटीजन्स है, फिर भी कहीं पे कचरा डालेंगे, कहीं पे कचरा जला देंगे, कुछ भी जला देंगे, और ये 12 महीने चलता रहा है और कोई इसको सीरियसली क्यों नहीं लेता, ये मुझे भी ताजुब लगता है। क्योंकि एज ए सिटीजन तुमको ये अगर अंडरस्टैंडिंग इतना भी नहीं है तो तुम कैसे, मतलब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे। और दूसरी तरफ कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज है जिनको कोई कंट्रोल नहीं है, वो खुद इसमें इन्वॉल्व है। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो चुका है और इस बारे में मैं बहुत बार लिख चुका हूँ। ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है पोल्यूशन बढ़ने में हमारे सिटी में। दूसरी बात है व्हीकुलर पोल्यूशन है, उसको भी अनकंट्रोल्ड है ये। तीसरी बात यह है कि हमारे सिटी में वृक्ष जो होते हैं, वृक्ष बहुत कम है। और वेरी सैड टू से, हमारे पास एक समृद्धि महामार्ग, बहुत एक बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग बन चुका है। ये मतलब ठेठ नागपुर से बॉम्बे को कनेक्ट करता है, और दूसरी तरफ ये धुले सोलापुर दूसरा ये हाईवे बना है। और ये दोनों महामार्ग के लिए बहुत से पेड़ जो है, जो बहुत सारे पेड़ है, वो कट किए गए हैं। उसका नंबर शायद लाख में भी हो सकता है, 1 लाख और मोर देन 1 लाख हो सकता है। ये बहुत बड़ा इसका रीजन है कि ये जो पोल्यूशन लेवल बढ़ रहे हैं, इसमें ये झाड़ कट किए हैं। और तीसरी बात, मैं अभी अभी आपको बोल रहा हूँ, ये हमारे नगर नाका टू दौलताबाद टी पॉइंट एक रास्ता है, वहां पे भी कम से कम 500 से 600 पुराने पुराने 100 इयर्स बिफोर के ट्रीज है, जो प्लानिंग हो रहा है कि रोड वाइडनिंग के लिए उसको कट किया जा रहा है। और उसी में मैं कम से कम आज 7-8 स्टोरीज बना चुका हूँ। और इसमें सब गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व है, उसको कट करके उसको रिप्लांट किया जाए। लेकिन एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ये इतना 100 साल पुराने रिप्लांट नहीं हो सकते। तो ये जो है कि एक तरफ ये झाड़ तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ झाड़ जो लगा रहे हैं वो बिल्कुल ही क्या बोलते हैं अब उसको, कॉस्मेटिक लेवल के जो झाड़ होते हैं, जिसका कोई जो देसी नहीं है, जिसका हमारे हमारे हमको कुछ उसका यूज नहीं होगा, ऐसे झाड़ एजेंसी गवर्नमेंट एजेंसीज लगा रही है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये तीसरी बात है। और बात ऐसी है कि इसको कोई मतलब किसी भी एंगल को कोई इसको सीरियस नहीं ले रहा है। तो ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। मैंने आज बहुत बार स्टोरीज की है, कभी भी AQI अपना हमारे सिटी का 150 के अराउंड या 150 के नीचे नहीं रहता है। ये मैं मेरे स्टोरीज में मैं बहुत बार मेंशन किया हूँ, उसमें ये सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है। जो जैसे आप बताया कि PM 2.5 PM10 जो बताया, लेकिन मुझे और एक डाउट है कि जो ये वैल्यूज है वो भी ज्यादा हो सकते, इससे भी ज्यादा हो सकते। उसमें एक्यूरेसी कितना है इसके बारे में डाउट है। तो ये फिर से एक बार ठीक से उसको देखना चाहिए कि कितना ये इसमें एक्यूरेसी है, कितना इसमें मतलब एक्चुअल वो रिकॉर्ड हो रहा है, पोल्यूशन है क्या नहीं, कितना है वो, उसके बारे में मुझे डाउट है। और ये लेवल पे कोई भी हमारे यहाँ पे भी 2-2 3-3 मिनिस्टर है, लेकिन नो वन इज वरीड अबाउट पोल्यूशन लेवल्स, एनवायरमेंट। ये बिल्कुल मतलब ये सीधी सी बात दिख रही है। इवन दो हमारे सिटीजन्स में जो अवेयरनेस चाहिए, जो जो इस बारे में कुछ करने के लिए तैयार होना चाहिए, उतने लेवल पे वो काम नहीं हो रहा है। कुछ रवि जी जैसे कुछ लोग हैं गिने चुने जो इसमें इन्वॉल्व है, कुछ काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से मेजोरिटी ऑफ द सिटीजन्स आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस एनवायरमेंट, ऐसा लग रहा है मुझे। और दिस इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। एट द सेम टाइम हमारे महाराष्ट्र में नासिक में तपोवन बोल के एक एरिया है जहाँ पे कुंभ मेला हो रहा है, उसमें सिर्फ 10 साल के जो झाड़ है, 10 साल के अंदर लगाए हुए झाड़ है, उसको तोड़ने के अगर गवर्नमेंट एजेंसी ट्राई कर रही है तो उसके खिलाफ बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो चुका है।
लेकिन वेरी सैड टू से हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है, इसके कारण भी बहुत से हैं, लेकिन ये होना चाहिए सबकी भलाई के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ये अंडरस्टैंडिंग हमारे यहाँ पे बहुत कम है। एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी के पास तो है ही नहीं है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई एजेंसी नहीं है, कोई उस पे मतलब कोई उसमें काम कर रहा है ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है। और सिटीजन्स भी उसमें बहुत सारा मतलब अंडरस्टैंडिंग कम है, ऐसा दिख रहा है मुझे, जो ये सब देख रहा हूँ मैं। इसी के कारण अभी मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, मैं हेल्थ रिपोर्टिंग भी करता हूँ, तो इसके बारे में जो आज जो वायरल डिसीजेस बढ़े हैं, निमोनिया बढ़ रहा है, तो 10-15 दिन वो कम नहीं होता है, एडमिशन करना पड़ता है। बच्चों में भी श्वसन विकार बहुत बढ़ चुके हैं। ये सीरियस है, लेकिन इसको कोई फारसा मतलब कोई ज्यादा इसको सीरियसली नहीं ले रहा है। ऐसी एक स्थिति है जो मैंने देखी है, मैं आपको प्रेजेंट किया हूँ। नहीं निखिल जी, ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है जो आपने बताया है, एंड बहुत ही सीरियस इश्यूज हैं एक्चुअली ग्राउंड पे। एंड ये डेफिनेटली हम हमारे अंदर वो एक आदत आ गई है कि मेरे घर से अगर कूड़ा निकल जाए फिर वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो सरकार का प्रॉब्लम है, सरकार देखेगी। एंड हम सबका माइंडसेट उस तरीके का हो गया है, जो इसलिए लोग जहां भी एक खाली जगह देखते हैं वहां कूड़ा फेंक देते हैं। ठीक है, तो क्या हमें अपने शहरों में, और जैसे आपने बोला कि अभी आपने हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखना शुरू किया, तो मुझे क्या आपको ये लगता है कि अगर हम हेल्थ फोकस अगर ज्यादा रखेंगे अपने आर्टिकल्स को, तो लोगों को शायद रियलाइज होगा दैट ये एयर पोल्यूशन कितना इम्पैक्टफुल है। नहीं तो अगर हम सलाह देने की कोशिश करेंगे तो लोग जल्दी सलाह लेते नहीं है, उनको लगेगा कि कोई हमें लेक्चर देने की कोशिश कर रहा है। तो हमें शायद अपने स्टोरीज को उस तरीके से नरेट करना चाहिए कि आपके हेल्थ नहीं, आपके बच्चों के हेल्थ भी इम्पैक्ट होंगे इससे। तो क्या आपको लगता है ये हेल्प करेगा? एक्चुअली वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। ओके। मैं हेल्थ रिपोर्टिंग तकरीबन 12 साल या उससे भी ज्यादा टाइम से कर रहा हूँ, और ये मेरे मतलब ये मेरे इंटरेस्ट के एरियाज है। मैं इसमें उस पर बहुत बार लिख चुका हूँ, लिख रहा हूँ। दूसरे उसके पहले न्यूज़पेपर में था, उसमें भी लिखता था, अभी जहाँ पे हूँ वहां पे भी लिखता हूँ। लेकिन ज्यादा उसका मतलब सोचते हैं लोग, जरूर पढ़ते हैं, सीरियस कुछ लोग होते हैं, उस वो कंसर्न दिखाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं आप, बहुत बड़ा मतलब कम्युनिटी है जो इसके बारे से मतलब दूर है, जो अपने अपने हमको तकलीफ नहीं होती, हम उसका सोचेंगे नहीं, बाद में होगा सो देगा, ऐसा एक एटीट्यूड है, वो दिख रहा है मुझे। राइट राइट राइट। ठीक है निखिल जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। थैंक रवि जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा दैट डिसेंट्रलाइज्ड कंपोस्टिंग प्लान्स होने चाहिए जो ड्राई लीव्स हमारे सिटीज में से गिर रहा है। बिकॉज लोगों ठंडी के मौसम में उसको जलाने का भी एक एक प्रचलन है, और फिर हमारे जो आपने बोला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो लोग हैं उसे इकट्ठा करके वो खुद ही जला दे रहे हैं। आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी कि फोटो लेके आप बताइए कहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो क्या हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास एक पब्लिक रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है कि अगर मैं कहीं पे कूड़ा जलते हुए देखूं और अगर मैं फोटो लेके कंप्लेन करूं तो क्या वो कंप्लेन एड्रेस किया जाएगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से? तो अगर आप इस पे कुछ टिप्पणी देना चाहें तो। यस, आई थिंक अभी एएमसी ने, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इनिशिएट किया है, ऐप बेस्ड कुछ वो बना रहे हैं, जिसके ऊपर मतलब सिटी कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है आप वो ये करें। अभी व्हाट्सएप पे और बाकी इस पे है कि आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, बट ऐप बेस्ड अभी मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 मंथ या विद इन 3 मंथ हमारे पास ऐसा होगा सिटी में। इसमें एक ऐसा पॉइंटर आता है कि जैसे अभी निखिल सर ने ही बोला, जो इन्वायरमेंट बीट कवर करते हैं या फिर जो कंटिन्यूअस इन्वायरमेंट में न्यूज कवर करने वालों में से सर हैं एक, जो कंटिन्यूअस मतलब जो एक गैप है उस मुद्दों को सर उठाते रहते हैं। सर ने जैसे अभी एक पॉइंट किया कि गैप बहुत है। जैसे समझ लीजिए असर कब होता है, जैसे हम किसी को अगर जगा रहे हैं सुबह उठने के लिए, तो वो अगर नींद में है तो वो उठ सकता है, बट वो जागा हुआ है और उसका नाटक कर रहा है तो वो नहीं उठेगा, वो सोया ही रहेगा।
तो कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन है कि हम एजुकेटेड हैं, हमें समझ में भी आ रहा है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, बट कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ मतलब लूफॉल्स निकाल के या फिर और ये करके मतलब अपनी ड्यूटी जो है वो फुलफिल नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में तो हम काफी स्ट्रिक्टली मतलब ये करते हैं। जैसे अभी पिछले हफ्ते की बात थी, एक ग्रोसरी शॉप में सिम्टम दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर प्लास्टिक या इनका जो भी कचरा है ये जला रहे हैं। शॉप के साइड में जो वॉल था, क्योंकि निशान थे वहां पे, मैंने 2-3 बार पूछा उनसे कि क्या आप यहाँ जला रहे हो कुछ, तो वो नहीं कहता था। बट एक दिन मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया, रात के समय 9:30-10 बजे का टाइम था, तो वो जला रहा था। मैंने फोटो वगैरह ले लिया और उसे फिर थोड़ा अलग तरीके से मैंने कहा कि अभी आपके ऊपर 25,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो बोले कैसे, मैं मेरे एरिया में जला रहा हूं। तो उसको बताया कि रूल्स रेगुलेशन है ऐसे, और आप पे अभी 25,000 का फाइन लगेगा। बट उसको और भी फिर बताया कि ये जो पर्सन जला रहा है या उसी के साइड में रेस्टोरेंट है, वहां पर भी लोग अगर आ रहे हैं तो उनके ऊपर, हेल्थ के ऊपर कितना इम्पैक्ट जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मतलब जो सिटी में ज्यादातर लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि अगर हम उन्हें डराएं, क्योंकि डिसिप्लिन जरूरी है और विदाउट डर डिसिप्लिन नहीं आता है। फिर वो डिसिप्लिन, वो डर किसी की इसका भी हो सकता है, एक्शन का हो सकता है कि जैसे हमने कहा कि 25,000 फाइन लगेगा, तो फिर उनका कुछ ट्रिगर हुआ कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। बाकी अगर हम अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो फिर उसका इम्पैक्ट बहुत मिनिमम होता है। तो इसीलिए हम भी अवेयरनेस में कुछ अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज मतलब ये करते रहते हैं ताकि वो हिट करे। हमारा ऑब्जेक्टिव है उन्हें अवेयर करना, फिर वो डरा के अवेयर करें या फिर किसी और इससे। और जो एक पॉइंट होता है कि जो एक अवेयरनेस का ओवरऑल, तो उसमें अभी जैसे सर ने एक एग्जांपल दिया नासिक का। नासिक में थोड़े से सिटीजन काफी अवेयर हैं इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे सिटी में थोड़ा सा मतलब वो लैक करता है कहीं ना कहीं। मतलब जैसे कोई अगर है तो हाथों पे गिनने जैसे लोग हैं जो इसके ऊपर फाइट करते हैं और आगे तक इसको मतलब ले जाते हैं। रवि जी, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा वहां रोकना चाहूंगी। और क्लियरली ये हमें पता चल रहा है डिस्कशन से कि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। बट लेकिन अगर कूड़ा इतने बड़ी मात्रा में जलाया जा रहा है और इतनी सारे चैलेंजेस हैं, तो क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, या कलेक्शन नहीं हो रहा है, या सेग्रीगेट नहीं किया जा रहा है, या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ट्रीट करने के लिए? मैं प्रॉब्लम क्या मैं है? इसमें, यस, एक्चुअली ये प्रॉब्लम पहले और डिजास्टर था। अगर मैं आपको कहूं कि हमारे सिटी में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो कचरा होता है, उसके लिए दंगे भी हुए हैं। मतलब जो पहले सेंट्रलाइज सिस्टम था, एक ही जगह पर पूरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाके ओपनली उसे डंप कर देता था। बाद में वहां के लोगों ने मतलब आंदोलन किया, मतलब काफी ट्रक जला दिए। जैसे जो ट्रक जाते थे वहां से उनके गांव से, वो उन्हें जला देते थे। तो ऐसा काफी डिफिकल्ट सिचुएशन आया। तो उसके बाद में डिसेंट्रलाइज वैसे अभी सिटी में 4 से 5 लोकेशन पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ये किया गया है प्रोसेस करने के लिए। उसके लिए उन्होंने प्राइवेट एजेंसी को ये दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। बट प्रॉब्लम ये है कि बाकी जैसे सिटी के आसपास का एरिया जो डेवलप हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां ना देते हुए वो डायरेक्टली रोड साइड फेंक दे रहे हैं। तो ऐसे जो गार्बेज है उसको मतलब बर्न किया जा रहा है। और स्पेशली ड्राई लीफ को लेके वो जो है, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है तो उन्हें ज्यादा मतलब ये होता है। और गार्बेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टनेज के ऊपर है, वेट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उनका मतलब पेमेंट होता है। तो ये जो ड्राई लीफ है वो लेते ही नहीं है, या वीक में एक ही बार आता है। तो फिर इसीलिए वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि इसे करे तो करे क्या। तो इसमें अगर जैसे ओपन स्पेसेस जो हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, तो हर वार्ड में एक ऐसा अगर लोकेशन हो जाए कि वहां पे वो ड्राई लीफ जाए। हम इसके ऊपर एक्चुअली काम भी कर रहे हैं थोड़ा। अभी तक हमारा एयर पोल्यूशन ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में था, बट इस साल से हमने वो हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्ट में लिया है। और अभी हम एएमसी को भी इस पे अप्रोच करेंगे और सीएसआर के थ्रू ये मतलब, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं कि हम सिर्फ बताएं ना कि बस ये कर लो वो कर लो। एक फुल प्रूफ सॉल्यूशन होना चाहिए जिसके ऊपर अगर हम 100% कहेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, तो वो कभी नहीं करेंगे। वो राइट, उनके
प्रॉब्लम्स हैं, उनके इंटरनल जो भी है, बट ओवरऑल रिजल्ट डिलीवर नहीं होगा। तो हम कुछ ऐसा Right. सॉल्यूशन वर्कआउट कर रहे हैं और उसके बाद हम कहेंगे हमें आपसे सिर्फ ये सपोर्ट लग रहा है, आप ये सपोर्ट हमें एक्सटेंड कीजिए, तो ये जो ड्राई लीफ वाला प्रॉब्लम है ये सॉल्यूशन में बदल जाएगा। क्योंकि गार्डन में अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन परचेस कर रही है, जो भी फर्टिलाइजर है या फिर कहीं से ट्रांसपोर्ट करके ला रहे हैं, तो वो मिनिमाइज हो सकता है, या फिर उस इसका तो उस वे में हम मतलब काम कर रहे हैं। और मुझे तो लगता रवि है जी, क्लियरली हमने हमने अपने एनालिसिस में भी देखा है, स्मार्ट फ्रेमवर्क से जब हमने कंपेयर किया कि हमारे एक्शन स्ट्रेटजीज जो क्लीनर एक्शन प्लान में है वो बहुत रोबोस्ट नहीं है। सो प्रोबेबली आई थिंक शायद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को डेफिनेटली सपोर्ट की जरूरत है कि आइडेंटिफाई किया जाए किस पोल्यूशन सोर्स के लिए किस टाइप की एक्टिविटी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगी एमिशन रिडक्शन के लिए। तो वो अगर सिटी लेवल पे बना के दिया जाए तो प्रोबेबली आई थिंक वो एक सपोर्ट हो सकता है। Thank you so much. I'll ये come back to you final comments. Dr. Sachin, if I can get your comments. You also can you hear me, Dr. Sachin? Dr. Sachin, are you there? ओके, जब तक डॉक्टर सचिन आते हैं I'll go to निखिल जी। निखिल जी, आपने क्लियरली आइडेंटिफाई किया कि चैलेंज क्या है। शहर में अवेयरनेस लेवल बहुत कम है, लेकिन क्या आप आपको ये लगता है कि वहां की सरकार काम नहीं कर रही है या काम कर रही है उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है? क्योंकि शहर बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रीज का भी ग्रोथ हो रहा है। सो क्या कारण हो सकता है कि ऐसा तो नहीं है कि अगर लोग आंदोलन कर सकते हैं वहां वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए तो इसका मतलब कि अवेयरनेस लेवल है, समझ है, बट एक्शन नहीं हो रहा है, बिहेवियर में प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उसको कैसे मीडिया के थ्रू एड्रेस किया जाए? बात ऐसी है कि कॉरपोरेशन ने अपनी ड्यूटी अच्छी निभाना बहुत जरूरी है। जैसा आप गार्बेज बर्निंग का इशू है, अगर किसी 4 आदमी को अच्छा मतलब फाइन लग जाता है, पेनलाइज किया जाता है, अगर 4 लोग को किया जाता है तो 5वां आदमी 100% सोचेगा नहीं भाई ये नहीं करना चाहिए। तो ये एक्शन कॉरपोरेशन लेवल पे होना चाहिए, जो होती नहीं है, बहुत कम एक्शन हुई है। अगर ये रेगुलर बेसिस में इन ईच कॉर्नर ऑफ सिटी अगर होता है तो ये प्रॉब्लम 1 महीने में कम हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर ये एक्शन लेते हैं तो बिल्कुल ये कम होना ही होना है, लेकिन कॉरपोरेशन में ये ऐसा होता नहीं है। किसी को मतलब नो वन इज कंसर्न अबाउट सच इश्यूज, बात ऐसी है। तो और दूसरी बात जो रवि जी बोल रहे थे, जो गार्बेज का प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग होना बहुत जरूरी है। गार्बेज कलेक्शन और उसी लेवल पे उसका प्रोसेसिंग होना, ये अगर 100% होता है, एटलीस्ट 70-80% भी होता है तो बहुत सा रिलीफ मिल सकता है। तो इस बारे में काम होना चाहिए। और ये कंसर्न एजेंसीज है, उन्होंने इसको प्रायोरिटी बेसिस पे रखना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करने के अलावा, अवेयरनेस को बढ़ाने के अलावा, हमें शायद अपना गवर्नेंस सिस्टम भी ठीक करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात नहीं करता है बहुत ही एक्टिव तरीके से, और मिसकम्युनिकेशन के चलते बहुत सारी चीजें डिले हो रही होंगी या क्या हो रही होंगी, तो वो चैलेंजेस भी हमको समझना पड़ेगा। I'll go back to Dr. Sachin. Are you there? Can you hear me? Dr. Sachin, you are on mute if you are talking. I am not able to hear you. Okay, I think there is some problem. We are not able to reach to him. Okay, so now these are some interesting, definitely a lot of challenges that we are seeing in the city. A lot of issues on awareness, lot of challenges on
the activities that the municipal corporation is taking. We have seen that, but somewhere I feel that डेटा जब तक हमारे पास सही तरीके से नहीं आएगा, एक्शन, उसका क्या एक्शन होना चाहिए, वो आइडेंटिफिकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमने क्लियरली देखा कि 2023 के पहले कोई डेटा नहीं है, प्रोबेबली क्योंकि कैंप स्टेशन 2023 में लगाए गए हैं। मैनुअल स्टेशन का डेटा अगेन बहुत रिलायबल नहीं होगा, पुराना डेटा है, लेकिन वही एक डेटा है, फिर हमें जाके देखने के लिए कि पहले क्या हो रहा था और क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं। But because our analysis is completely focused on CAM station, because ज्यादा डेटा मिलता है कैम स्टेशन में, वो थोड़ा रिलायबल होता है कंपेयर टू मैनुअल स्टेशंस, वी हैव कंसिडर दैट। बट क्लियरली डेटा गैप है, डेटा कवरेज का प्रॉब्लम है। निखिल जी ने भी इस चीज को हाईलाइट किया कि हमें डेटा को जाके देखना चाहिए, बट मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये डेटा जो उनके वेबसाइट पे है, हमने वही डेटा लिया है एनालिसिस के लिए। अब मॉनिटर से अगर जो प्लेटफॉर्म पे डेटा आ रहा है, अगर वहां पे कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, बट वी हैव टू रिलाई ऑन वॉट एवर डेटा वी कैन सी। बट मैं यहाँ पे एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगी और मैं आप दोनों से ये चीज पूछना चाहूंगी कि आगे चलते हुए छत्रपति संभाजी शहर के लिए शॉर्ट टर्म नहीं बट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या होना चाहिए, किस चीज पे हम फोकस करें कि हमारे जो वेस्ट बर्निंग चैलेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चैलेंज है, इंडस्ट्रीज जो बढ़ रही हैं, इनसे बहुत सारा पोल्यूशन निकल रहा है। और हमने हमारी स्टडीज में भी देखा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, व्हीकलर एमिशन, डस्ट, ये मेजर प्रॉब्लम है। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या होना चाहिए सिटी के लिए? रवि जी। यस, अब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो एक तो पार्ट है, जैसे आपने कहा, गुड गवर्नेंस का एक पार्ट आ जाता है, जो एक गवर्नमेंट या अथॉरिटीज की जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सही रखें, और वो सही रखें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है सिटीजन्स के ऊपर, कि अगर सिटीजन्स एक्टिव हैं तो फिर यहाँ पर जो अथॉरिटी है उनको भी एक्टिव रहना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जैसे यहाँ पर जो हम क्या कर सकते हैं इसमें, या एज ए सिटीजन जो एक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसमें एक तो ग्रीन कवर जो एक लैक कर रहा है सिटी में, जो ट्री सेंसस हुआ नहीं है, तो एग्जैक्टली काउंट नहीं है, बट एक 4 to 5 लाख ट्रीज होगा हमारे सिटी में, जो कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अराउंड 1 CR प्लस होने चाहिए, जो ट्रीज एक हेल्दी लाइफ इसके लिए। तो ये इस पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ग्रीन कवर बढ़े। और एक जो पोल्यूशन का सोर्स है, जो ट्रैफिक हो सकता है, तो हमें ट्रैफिक को स्मूथ बनाना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको सही करना पड़ेगा। जो यहाँ पर है अभी स्मार्ट सिटी के अंडर में, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ है, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं है कि वो उसे यूज किया जाए। वो अभी आज वही लोग यूज कर रहे हैं जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली अगर एक प्रॉपर वे से फंक्शन में हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में उसे मतलब यूज किया जा सके, और जो एक इमिशन होता है उसको कंट्रोल किया जा सके। कुछ और चीजें हैं जैसे रिंग रोड और बाकी सब है, कि जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का पार्ट है तो वो सिटी में ना आए, जो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से होता है, तो वो सिटी से अभी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत उसके ऊपर काम हुआ है, और इन फ्यूचर गवर्नमेंट उसके ऊपर है कि मतलब रिंग रोड बना के ट्रैफिक हम डाइवर्ट कर दे बाहर, तो उससे भी वो पोल्यूशन पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही। और इसके साथ में जो एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का भी स्टेज है यहाँ पर, जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, नई नई कंपनियां आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये अथॉरिटी को भी चाहिए, और हम जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन्वायरमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सिर्फ एक प्रेजेंटेशन या फिर सिर्फ कहने के लिए नहीं, एट एक्चुअल एक विजन डॉक्यूमेंट बनाएं और डिलीवरेबल एक्शन लें, ग्रीन कवर हो या एयर पोल्यूशन हो। जैसे आने वाले 10 साल के बाद यहाँ पर तो एयर पोल्यूशन का काफी डिजास्टर होने वाला है, तो उसकी तैयारी हम अभी से कैसे कर सकते हैं, कि उसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे एज ए ऑर्गेनाइजेशन
को एक साथ आके कलेक्टिव एफर्ट्स लगाना बहुत जरूरी हो जाएगा। राइट। नो नो, आई कंप्लीटली अग्री दैट एक कोलैबोरेटिव वे में काम करना पड़ेगा, ना ही गवर्नमेंट बट जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, एक्सपर्ट्स जो काम कर रहे हैं, सिटीजन ग्रुप्स हैं, एनजीओज हैं, सबको मिल के काम करना पड़ेगा, तभी हम एक चेंज ला पाएंगे। नहीं तो ये खाली एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो जाती है कि कूड़ा साफ करना है और एयर पोल्यूशन साफ करना है। अगर कचरा हम फैला रहे हैं और हम जला रहे हैं, so it is just not the responsibility of government to clear the mess. We will have to be equally responsible. इसलिए शायद पोल्यूटर पे प्रिंसिपल का नॉर्म लाया गया था इंडस्ट्रीज में कि जो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पोल्यूट करेंगी वो पैसा देंगी। प्रोबेबली शायद हमें उसको शहर में भी अपनाना पड़ेगा। गोइंग टू यू निखिल जी, आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या होना चाहिए सिटी के लिए? पहली बात तो ट्री प्लांटेशन बहुत कम है, ट्री प्लांटेशन होना चाहिए और हर जगह होना चाहिए, प्रॉपरली होना चाहिए, जो कि मतलब कट होने की जरूरत ना गिरे। दूसरी बात है कि जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है वो अंडरग्राउंड होना चाहिए। ये वायरिंग की वजह से हर बरसात के दिनों में कट करना पड़ता है और वो बहुत विचित्र रूप से कट किया जाता है, जिससे वो झाड़ कुछ रहता नहीं है। ये अंडरग्राउंड वायरिंग होना चाहिए। दूसरी बात है, तीसरी बात गार्बेज मैनेजमेंट एकदम प्रॉपरली होना चाहिए। तीसरी बात है, हमारे पास हमारे सिटी में हर जगह अभी कंक्रीट के रोड्स हुए हैं, लेकिन कंक्रीट में डस्ट ज्यादा उड़ती है। जो डांबर के रास्ते रहते हैं उसमें डस्ट एब्जॉर्ब होती है, ये कंक्रीट में ज्यादा बढ़ती है। तो एटलीस्ट ये जो रास्ते बनाए हैं तो एंड टू एंड जो बचा हुआ है उस पे डांबर डाल के डांबर जो साइड पट्टे होते हैं, जो साइड लाइंस होते हैं, तो उसको डांबर से पूरा कवर करना चाहिए, जिस वजह से डस्ट नहीं आएंगी। डस्ट कम हुई तो पोल्यूशन लेवल्स कम होना ही होना है, ये तो एक्सपर्ट्स भी एक्सेप्ट करेंगे। तो ये होना चाहिए। दूसरी बात, पब्लिक में अवेयरनेस के लिए बहुत सारा काम होना चाहिए, ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। और पेनलाइज किया जाना चाहिए जो एक्टिविटीज होते हैं, गार्बेज बर्निंग की हो या किसी और की हो। और ये जो रवि जी ने बताया कि जो ड्राई पत्तों का जो ये होता है, वो किसी हर एरिया में उसके लिए जगह होनी चाहिए, वहां पे डाल के उसकी प्रोसेसिंग होना चाहिए। कहीं पे भी फेंकना, नाले में फेंकना, ये कहीं भी रास्ते में फेंकना, ये सब हमारे सिटी में ज्यादा है। ये आप एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन वाटर पोल्यूशन में भी बहुत काम होना जरूरी है। वाटर पोल्यूशन का हमने डिस्कशन नहीं किया, वो अलग सा टॉपिक हो सकता है, लेकिन ये उतना ही, वाटर पोल्यूशन भी उतना ही बढ़ गया है, उस पर भी काम होना उतनी ही जरूरत है, ये मुझे लगता है। यस, थैंक यू निखिल जी। डॉक्टर जोशी, डॉक्टर सचिन, आर यू देयर? कैन यू हियर मी? Dr. Sachin is attending to some emergency in the hospital, so he will be back shortly. Okay. Yeah. Fine. Shweta, then probably you do connect with him, and I would end this panel here with inputs from both the panelists, Nikhil ji and Ravi ji. And yes, over to you, and then we can take some questions. We have a few questions from our participants. One of the question is, yeah. Why is there no government representative on the panel? Yes, we would have loved to have a government representative, and in all our previous panels, we had people from Municipal Corporation and Pollution Control Board. Just that in Chhatrapati Sambhaji, there is some annual day or some program going on with the Municipal Corporation, so they could not, come on this panel. So we would have definitely loved it. Second question, there will never be a complete picture until the panel is balanced with views from all quarters. We completely agree with you, participant, and we believe that people from all quadrant are essential when we talk about air pollution, and hence that is why we have people from media,
We have an health expert and we have a citizen group NGO with us on this panel, not only experts, because their opinion is also very important. We have question from Bhagwanji. Why not put low-cost sensors in residential areas near in the industrial zones? Definitely, we should do that. Definitely, putting low-cost sensor can bring a better understanding wherever there are no reference grade monitors. But this is something that the municipal corporation will have to take a decision, because एक इंस्ट्रूमेंट के लिए भी पैसा लगता है, और अगर हम 4-5 इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, it's not the capital cost only, उसका operational cost, expertise to understand the data and evaluate it, और खाली सेंसर का जो डेटा आएगा उससे ही अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हमें ग्राउंड पे जाके भी चेक करना पड़ेगा कि क्या एक्टिविटीज हो रही है जिसके वजह से वो सेंसर ज्यादा डेटा आ रहा है या लो वैल्यूज आ रहे हैं, हाई वैल्यूज आ रहे हैं, तो वो सब भी हमें देखना पड़ेगा. बट डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड सजेशन दैट लो कॉस्ट सेंसर्स को हम अपना सकते हैं in probably specifically in the northern and the southern belt जहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है. There is another question. Why is the temporal scale of the study only from 2023 till 25? It should have a baseline from the time of implementation of the NCAP program. So definitely NCAP program was launched in 2019. 2020, 21, we had COVID. So most of the implementation activities started from end of 22, 23. Okay. So monitoring will definitely give us a better understanding. And that is what I mentioned in my presentation also, कि ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तभी हमको पता चल पाएगा कि पहले क्या सिचुएशन थी और अब कितना चेंज आया है, कितना बदलाव हुआ, इम्प्रूव हुआ है कि और खराब हुआ है. बट क्योंकि कैंप स्टेशन प्रोबेबली 2023 में इंस्टॉल हुए हैं, इसलिए डेटा वहीं से उसी साल से अवेलेबल था, तो हमने 23 to 25 ही कंसिडर किया है. या Shweta, hope we have addressed most of the questions, or there are more? Yes, Okay, thank there's you. one more question I see from Mahesh Joshi. This is not a question, but additional information. We no longer need to depend solely on the MPCB or CPCB for air quality data. Smart City project has already installed 27 stationary and 2 mobile air quality monitoring stations, which are currently operated by the Bhubaneswar-based company AuraSure. Okay, thank you, Mahesh, for this information. Now, AuraSure again is a low-cost sensor device. I know them very, very well since last couple of years. But again, the challenge for these low-cost sensors data comes that whether instruments are calibrated properly, whether they are co-located with the reference grade monitors, how well they are monitored. So they are good to get an understanding on what is the level of pollution, but when it comes to implementation, we cannot rely on the low-cost sensors. Yeah, I think we have captured everything. Over to you, Shweta. Thank you so much for answering all the questions. Thank you so much for taking out the time to engage in this important discussion on Chhatrapati Sambhajinagar's air pollution crisis. And we are sure that we all will move forward with some meaningful learnings and key takeaways from this conversation. At iForest, we remain committed to driving the conversation on air pollution across all our social media platforms and beyond. So stay tuned as we bring the concluding episode of Smog Tales, spotlighting the pollution situation in Chandrapur. Thank you so much. Thank you, Shweta. And thank you, everyone. Nikhil ji, Ravi ji. Thank you. And thank you, Dr. Joshi, also to find time from his busy schedule and be on this platform. Have a good day.